Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Be a Programmer में. So today we are going to shoot our Q&A second video. This is our second Q&A video and I am going to answer everything that you have asked. I have posted a community post here. So when you will go to my community tab on my channel, that is Be a Programmer, I am on Be a Programmer community. On the community tab, I have posted a photo. A post was about the Q&A. It was basically that when you will post, you posted your questions there and I am going to answer your all questions. All 24 questions will be asked, will be answered in this video. So be tuned, your all questions are picked up in this video. So let's start with the video. So the first question is of Ashok. Ashok is saying that I had done BSc Computer Science in 2019 and can I get a job as Java developer because here is 2 years of gap. Okay. So Ashok, basically I will tell you one thing. You have done the BSc with computers. Okay. You have done the BSc with computers. So you might be knowing something about like computer science programming language or Java. बेसिकली इफ बीइंग स्पेसिफिक, अगर हम स्पेसिफिक होकर बात करें तो आपको जावा के बारे में पता होगा जावा क्या होती है. तो मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको ना देखो कई चीज़ों के बारे में फोकस करने की ज़रूरत है. किन की चीज़ों के बारे में फोकस करने की ज़रूरत है? पहली चीज़, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद पढ़ते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to do some practical programs there. Okay, some practical programs. Then what is the level 2? The level 2 is that we need to do some projects. Suppose we learned one concept of class. Suppose we learned a concept of class. So we need to know that in projects we will be knowing where this class is used, what is the concept of this class, what is the application of this class. You will know everything and you will be able to understand by yourself how can we do this thing with this concept, where this concept can be used, and this all is very easy to learn. Resume is very important. Build a good resume, and many are saying that how to build a good resume. If you want a video on how to build a good resume, you can also comment down. I have posted a video for non-tech, how to make a resume on non-tech. I will mention that link in the description also. And if you want a video on how to build an effective resume for a technical job, how to build an effective resume, you can just mention in your comments down. I will definitely make a video on that. That is for sure. I will build a resume. I will show everything practically in that video. So what we need to do? We need to do the things practically. When we learn the things practically ना, because programming language is everything and that is practical. हर चीज practical है. We need to learn everything practically. Next question पूछ रहे हैं हमसे विशाल कुमार सेठ. विशाल कुमार सेठ is saying that road map to make a career in IT. Important things about IT sector in to get into it. It is my domain question. मेरे domain का question है. So I will answer that very nicely. I will answer you very nicely. First thing, when you are getting into the college, firstly, when a child gets into the college, when he chooses to make his career in IT, when he chooses to make a career in his IT, what are the things he need to make in the mind? Firstly, the first thing is you need not to learn multiple languages. Like I have seen many people like they are learning C also, C++ also, Java, Python, Perl, R, JavaScript, Node.js. They are learning many things. They are learning everything. They are saying like they are not perfect in anything, but they are learning multiple languages. The thing is that they are thinking that when you will learn multiple things, you will get a good job. That is not a case in the IT industry, IT sector. That is not a case. I will tell you, I got my first job on the basis of only C language. Only C language I got the job, and that is the basic thing you need to know. The basic thing is that you need to have a hand expertise on a single language. When you are talking about C language or C++ or Python or Java or Perl or Ruby, anything, you are talking about any language, you need to get expertise on that language. Okay, and do projects. Projects is very necessary. When you want to make a career in IT sector, projects will be very necessary to learn everything and to understand everything, and it will help you in your job interviews also. The next question is interview tips asked by Bisal Prasad. Bisal Prasad is asking me that
interview tips on Byju's product specialist. Actually I am planning to make a video on that. I will definitely make a video. It will take me some time because being a solo creator, it takes time to create videos, because content is something that quality matters, and for that quality I need to do many research. I do research. Tips on basic tips, that is, you need to know about mentoring. It is a mentoring job. Okay, Byju's product specialist is a mentoring job. Second thing, you need to, they will ask about, do you like to interact with people, or they will give you some scenarios how you will convince a person who is going to, like, he wants refund of the course, and you need to convince him that that refund is not necessary, or this will be beneficial for you. That you need to convince. These kind of questions can be asked, and I will also post one more video that is that will be dedicated to your this question. Okay, so next question asked by Feel the Change. It is a YouTube channel. Feel the Change is asking me that, sir, this side Aditya, hello Aditya, finally today I got selected for BDA post for Bareilly location up today itself, and I am thankful for your guidance. I only follow your tips and to crack the interview because becomes easier. A lot of thanks. Want to send you lots of love. Okay, thank you so much. It is a great pleasure for me also. I am glad to hear that, because it is very happening moment, because when you post something or when you share experience, and that experience helps many of you, and it has helped many of you, and I have got many feedbacks. I am very happy for that. Thank you so much, Aditya. Let's go to the next question. That is, sir, please make a video on Byju's product expert interview. Okay, I will make, for sure I will make that, Harshita. Thank you for your suggestion. I will make that, as I have given this tip previously. Let's see the next question. Next question is asked by Technical Amma. Technical Amma is asking me that compound interest के questions कैसे करें, थोड़ा टफ लगता है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में इतना टफ तो देखो, टफ तो एप्टीट्यूड जब आती है बात ना, वहाँ टफनेस नहीं चेक की जाती, या तुमको बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं चेक किया जाता. वहाँ चेक किया जाता है योर स्पीड, योर थिंकिंग एबिलिटी, योर लॉजिकल एबिलिटी. तो ये सारे क्वेश्चंस देखो, बेसिक थिंग्स. कभी मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन की बात करता हूँ, आई नीड टू रिमेंबर द बेसिक थिंग को रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, देखो परसेंटेज में बेसिक थिंग क्या होता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100, परसेंटेज निकल गया. ऐसे ही इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या किसी भी प्रोबेबिलिटी की बात करें, किसी भी चैप्टर की बात करें, बेसिक एक पहला हमको प्रैक्टिस जरूरी है. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी प्रैक्टिस अलॉट ना, वी आर गोइंग टू फेस द क्वेश्चन इफ वी प्रैक्टिस अलॉट. सपोज वी आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चंस very dedicatedly, we are practicing the questions. So when exam comes, exam जब आता है, तो मेरे सामने जो क्वेश्चन आएगा ना, probability इतनी ज़्यादा हाई होगी ना कि वो क्वेश्चन हम किए होंगे पहले से. That question will already like we have already solved that question, so it will be easy for you to do that question. So practice is very necessary, and in aptitude practice is very necessary. Farah Ali is asking me that what to do after CSE engineering, which course will be beneficial, or if you want to go US, is there any go US? Okay, if I want to go US, is there any opportunity for middle class students? So if I am talking about anyone, so he is basically asking me that what are the courses of CSE engineering and how can we go abroad. US कैसे जा सकते हैं, या कोई भी अब्रॉड कंट्री में जाके कैसे पढ़ सकते हैं. और देखो बेसिकली पहले मैं बात करता हूँ, इसको यहाँ जाने के लिए पहले तुमको बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होते हैं, कई टेस्ट होते हैं. आइल्स होता है, टॉफल होता है, PTE होता है, ये सारे GRE होता है. ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो एग्जाम्स है ना, ये सारे क्रैक करने, कोई भी एक क्रैक करना ज़रूरी है. अगर कोई एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाता है, फिर हम उस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं. और इंजीनियरिंग क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड तुम कोर्स कर सकते हो, डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हो, नेटवर्क इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हो. डेटा साइंस इज बहुत अच्छा कोर्स है. डेटा साइंस का वो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा कोर्स है, वो हम कर सकते हैं. और US जाना, और कहीं किसी भी कंट्री जा सकते हो. वो टेस्ट अगर क्लियर हो गया तो वो किसी भी कंट्री जाके तुम कहीं भी पढ़ सकते हो अब्रॉड.
और देखो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल तो है, लेकिन फंड्स रहना ज़रूरी है, फंड्स रहना ज़रूरी है, बिकॉज फंड्स आर नेसेसरी, फंड्स ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्नेहिल वर्मा पूछते हैं हमसे, सवाल कुछ नहीं है सर, बस थैंक यू, आज जिस पोजीशन पे हूँ आपकी वजह से हूँ सर, बस एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉलिंग ऑफ द वीडियो। ठीक है, सो स्नेहिल वर्मा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू इतने काइंड वर्ड्स के लिए। लेकिन मेहनत तो आप ही की है ना, मैंने तो बस एक बताया कि हाँ मैंने क्या किया था या क्या क्या चीज़ें थी, मेहनत तो आप ही की, आप नहीं किया। और डिफरेंट एस्पेक्ट है ये तो आपके ट्रेनिंग मैनेजर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, मेरे से अच्छे, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, मैं थोड़ी ना इतना बता पाऊंगा। मैं तो बस बेसिक अपना जो मैंने किया, जो मैं करता हूँ वो चीज़ बताता हूँ बस, लेकिन सही चीज़ तो वो लोग बताएंगे ना, तो वो चीज़ है। ठीक है स्नेहिल, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आता है आशुतोष दरेकर का। आशुतोष दरेकर मेरे से पूछ रहे हैं कि हाउ टू मेक अ करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग आफ्टर ज्वाइनिंग बायजूस कमिंग फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड। सो बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग, पहले तो सेल्स की बात करता हूँ। सेल्स देखो कोई डिग्री तुम्हारी नहीं मांगता है, सेल्स के लिए कोई डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तुम्हारी स्किल्स, बात करने की स्किल्स, कैसे तुम कन्विंस करते हो, किस तरह बात करते हो लोगों से, वो इंपॉर्टेंट है। और बीटेक और किसी भी बैकग्राउंड से आओ, बीकॉम के भी लोग काम करते हैं, बैकग्राउंड बीए के भी लोग काम करते हैं, बीसीए के भी लोग काम करते हैं, बीबीए के लोग भी काम करते हैं बायजूस में। तो वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि बस बीटेक से ही ऐसे हो सकता है या बीबीए से या एमबीए से ही हो सकता है। सेल्स में तुम कोई भी करियर बना सकते हैं अपना, बस उसका क्या है ना, थोड़ा सा बेचना, चीज़ों को बेचना, चीज़ें लोगों से बात करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सही बेसिक चीज़ें हैं। और मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं बायजूस के ऊपर, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा तो वहाँ से जाके, यार डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं जीपीपी गुरु मेरे से पूछ रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन विल बी विच विल आस्क प्रोबेबली इन, सो ही इज बेसिकली आस्किंग मी दैट C programming question which will ask probably in TCS NQT exam. So talking about the C programming is something that we call a root of a tree. That is important, and the output question that will come is majorly from the C programming section. Because वो सबसे, that is the basic thing. When we learn about any programming language, we learn firstly about C programming. C programming is important. Okay. So next question is asked by Renu Gupta. पोस्टेड समथिंग जॉब लाइक जिसमें हम इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। और लहारी कोला मेरे से उसे पूछ रहे कोडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू टीसीएस एनक्यूटी। एक्चुअली मैं कोडिंग क्वेश्चन जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, मेरे को थोड़ा सा लेट लग जाता है क्योंकि मैं अकेला, मतलब सोलो क्रिएटर हूँ और थोड़ा सा टाइम लग जाता है कंटेंट बनाने में, अपलोड करने में, मतलब एडिट उसको करना प्रोसेस होता है पूरा, थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। तो मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। प्रोग्रामिंग लॉजिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब का आपको टीसीएस का पूरा एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप सारा चीज़ देख सकती हैं, जाके प्लेलिस्ट एक बार डिस्क्रिप्शन देख लें। और रेनू गुप्ता आपका इंग्लिश इंटरव्यू अगर मैं बात करूँ जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू दे सकते हैं, यही बेसिकली ना, तो इसके वीडियोज़ में कोशिश करूँगा। बेसिकली तो ये रिलेटेड होंगे अपने सेल्स से ही ज़्यादातर रिलेटेड होंगे, इंडिया बेस्ड सेल्स से, इनसाइड सेल्स से या डायरेक्ट सेल्स से, जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा। बायजूस में आप अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश उसमें चलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पल्लवी प्रिया पूछ रही हैं, टाइम मैनेजमेंट का टिप्स टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए। देखो टाइम मैनेजमेंट के टिप्स मैं कुछ ये दूंगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो, मान लो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज क्वांट सेक्शन, जब आप क्वांट सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वांट सेक्शन में बेसिकली क्या होता है ना, टाइम कम पड़ता है। टाइम कम इसलिए पड़ता है बिकॉज हम ना एक क्वेश्चन को प्लान नहीं करते हैं, पहले हम प्लान नहीं करते, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना क्वेश्चंस को, तो उसी समय टाइमर लगा के या एक टाइम सेट करके कि इतने देर में मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, उतना सेट कर लो, तभी वो क्वेश्चन तुम जल्दी कर पाओगे। बिकॉज कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जिसमें, देखो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कई क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाएगा, कई क्वेश्चन तुम्हारे 30 सेकंड में हो जाएंगे, कई क्वेश्चन तुम्हारे 1 मिनट में हो जाएंगे, तो वो डिफर करेगा। तो अपना टाइम उस तरह से मैनेज करना जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, प्रैक्टिस से जितना हम प्रैक्टिस एप्टीट्यूड करेंगे उतना जल्दी टाइम को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। नीरज नासवा मेरे से पूछ रहे हैं कि प्लीज मेक अ इंटरव्यू वीडियो ऑन प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। हाँ श्योर, मैं बना दूंगा, पहले भी कई लोग रिक्वेस्ट आए, मैं बना दूंगा। बेसिकली आप लोग ना बस कमेंट डाउन कर दो, एक भी कमेंट मेरे को मिल जाता है ना, मैं उस पर वीडियो पे काम करना चालू कर देता हूँ। मेरी आदत है यार, कोई भी वीडियो कोई भी पोस्ट करता है, कोई भी क्वेश्चन, तो मेरा बस चले तो मैं हर एक क्वेश्चन का वीडियो में ही अपलोड करके रिस्पॉन्स दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि हर चीज़ को अच्छे से समझाना, लेकिन क्वालिटी मैटर करती है, तो क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा डिले होने लगता है।
तो वहाँ पे काम बढ़ने लगता है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के ऊपर बायजूस के। थैंक यू सो मच नीरज फॉर सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो मुझे खुशू जून, ठीक है, खुशू 20 जून पूछ रहे हैं, वाई सेल्स आफ्टर लॉ। अब देखो ये सब क्वेश्चन, वाई सेल्स आफ्टर बीटेक, वाई सेल्स आफ्टर बीबीए, वाई सेल्स आफ्टर एमबीए, ये सब क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके फील्ड के बंदा ही बता सकता है या आप ही। पहले देखो क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इसमें। पहले तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, कुछ भी एक्सप्लेन करना है वाई सेल्स आफ्टर बीटेक या वाई सेल्स आफ्टर लॉ। मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा बायजूस के, वहाँ मैंने पोस्ट किया वाई सेल्स आफ्टर बीटेक। ऐसे ही सेम अपने मतलब जैसे लॉ आप कर रहे हैं तो लॉ के हिसाब से आप फिगर आउट, मतलब रेफरेंस ले सकते हैं मेरे आंसर से और आप बना सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो ऋचा राज मेरे से पूछ रही हैं। ऋचा राज मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा नाम ऋचा राज है, ओके, मैं बीसीए से ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीसीए से ग्रेजुएशन किया है, आगे क्या लाइन चूज करूं, मेरा प्रोग्रामिंग में बिल्कुल मन नहीं लगता। ठीक है, कोई बात नहीं ऋचा, देखिए पहली बात तो ना, आप बीसीए से अगर की हुई हैं तो आपके पास देखिए कई ऑप्शंस हैं। आप सेल्स में जा सकती हैं, मार्केटिंग में जा सकती हैं, ऑपरेशंस में जा सकती हैं, मैनेजमेंट के में थोड़ा बहुत जा सकती हैं। बेसिकली डिपेंड करेगा। देखो कई जॉब्स होते हैं ना जो नॉन टेक के जॉब्स होते हैं, जैसे कि अमेजॉन का जॉब है जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, फ्लिपकार्ट का वीडियो पोस्ट किया था, और भी वीडियोस आगे, एक मैं विप्रो के ऊपर वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, वो वीडियो होगा, वो भी नॉन टेक के लिए, उसमें कोई भी कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो आईटी नॉन टेक में ही बेसिकली जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग अगर प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती है, मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि ही इज आस्किंग अबाउट टेक्निकल इंडियन इज आस्किंग मी, भाई आपकी बायजूस का ट्रेनिंग का टारगेट कितना है और कितना टारगेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो टारगेट का कंप्लीट ये सब अब मैं पब्लिकली बताना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आप मेरे से पूछो, वैसे मेरा टारगेट हो गया है वैसे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आप अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। और भाई आपकी बायजूस की ट्रेनिंग का टारगेट, मेरा टारगेट था 2 lakhs का टारगेट था बेसिकली 2 महीने का, और या 2 lakhs कर दो या 4 सेल्स कर दो, जो मैंने एक्सपीरियंस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे से कमाल कस्तागिर पूछ रहे हैं, हाउ टू मेक अ करियर ऑन IT सपोर्ट। IT सपोर्ट की अगर हम बात करें ना, IT सपोर्ट देखो पहले तुमको ना कुछ टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत होनी चाहिए, जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ विंडोज़, बेसिक कुछ वो कंपनी के हिसाब से होता है। अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन में IT सपोर्ट होता है, फ्लिपकार्ट में है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में है IT सपोर्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो पहले उसका जैसे वो घुसा था कस्टमर सर्विस से, he entered into the job with a customer service associate, okay, when he entered he worked as a customer service associate and giving the internal interviews. There were internal interviews. After giving the internal interviews he got selected into IT support. Now he is working as a IT support. So एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है, अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं तो आप एक एक स्टेप लेके जा सकते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग। लर्न हाउ टू लर्न C# फॉर बिगिनर्स एंड हाउ टू लर्न कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। CP कैसे लर्न करें, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग देखो C# फॉर बिगिनर्स। C# की बात करें तो C# देखो पहले तो C, थोड़ा बहुत C तो पता ही होगा आपको, ठीक है, यू माइट बी नोइंग अबाउट C, ओके, and about the concepts of C++, what are the concepts of C++, and C# are mostly थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सिंटैक्स में थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस है। you can refer many videos are there on YouTube also, you can many tutorials are there on YouTube, you can refer that. And if you want tutorial on C language, I have posted many videos on C language, you can check my playlist, you will get many videos related to C language, okay. And how to learn CP, competitive programming is basically you can learn from the hacker rank. You can practice top coders, hackathon, there are many sites from which you can practice the CP, competitive programming, and it is necessary if you want to get into a big company or big package you want, so CP must be practiced regularly. Thank you for watching this question, Rajni Upadhyay, thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजत देवांगन इज आस्किंग मी, भाई आप NQT के प्रीवियस क्वेश्चन अवेलेबल करा दो ना।
सो एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिलेबस पहले था, अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो गया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक्चुअली कुछ है नहीं। आप CCQT के क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन जो नहीं होता है, जो मैं वीडियोस पहले पोस्ट कर चुका हूँ TCS के, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ी हुई है मटेरियल्स की, उसमें मैं अपडेट करता रहता हूँ क्वेश्चन, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक्निकल इंडियन, डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर दिस ग्रेट compliment. Thank you so much. I am trying to do my best. Thank you so much. Michael Smith is asking me, make a video on home based jobs please. Sure, I will make that video. पुष्पेंद्र सिंह गलोट इज आस्किंग मी दैट सेल्स की प्रोफाइल है क्या अदर कंपनीज में भी? डेफिनेटली है, बहुत कंपनीज में है। एक्स्ट्रा मार्क्स में आप जा सकते हो, वेदांतु में जा सकते हो, आप टॉपर में जा सकते हो, आप बहुत से कंपनीज हैं, सैमसंग बहुत से अपने सेल्स के प्रोडक्ट्स निकालते हैं, सेल्स का टीम बहुत सबके पास सेल्स की टीम होती है। अप्लाई कर सकते हैं आप सर्च करके naukri.com सर्च कर लो, या किसी साइट पे सर्च कर लो, करियर्स पे जाके उसके सर्च करके आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि सार्थक नायक पूछ रहे हैं हमसे कि भाई बिना कोडिंग सीखे कोई जॉब मिल सकती है कोई कंपनी में, सेल्स जॉब छोड़ के कोई जॉब? प्लीज अपडेट डू। ओके। तो बेसिकली आपको देखो, पहली बात तो कोडिंग तभी ज़रूरी है जब आप IT कंपनी में घुसना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द IT कंपनी, IT सेक्टर में जाना चाहते हो, जो कि IT का जॉब है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंजीनियर, इन सब का जॉब है, तो वहाँ पे आपको कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो काम ही वही है। और अगर आपको सेल्स को छोड़ के कोई जॉब करनी है तो मैनेजमेंट की आप जॉब देख सकते हो, या आप सेल्स एसोसिएट का कस्टमर एसोसिएट का जॉब देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, मैंने अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, वहाँ से जाके आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन उठा लिया था, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, और मैंने सारा क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया, सारा क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया। अगर आपको ऐसी वीडियो Q&A वीडियो मैं ऐसे ही पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी टैब में, यहाँ पे कम्युनिटी टैब में आपको ऐसे ही पोस्ट आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी पोस्ट डालता रहता हूँ, पोल लेता रहता हूँ किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो वहाँ पे मेरे को एक आइडिया हो जाता है किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, और मतलब किस टाइप की वीडियोस मेनली मेरे को पोस्ट करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि ऑडियंस मैटर ना, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही चीज़ें मैं पोस्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, चीज़ें पूछता रहता हूँ, क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ, Q&A वहाँ पे भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आपको so that you never miss the latest update, as we are posting videos on basically on job interviews, how to excel in job interview tips, or basically on TCS or NQT or everything we are posting. So thank you for watching this video. Thank you so much.